Namaste to all. Again, I am here with the question paper of class 8 mathematics of periodic first. I am discuss the questions of this question paper. Question number first, total 12 question, objective types. Question number first, the square root of 0.0005949. Total 2 to 4 to 6 to 8 digits after decimal. So number of digits of the square root of this number will be 4 because 4 pairs, इसलिए इसका आंसर 4 होगा. क्वेश्चन सेकेंड, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नेचुरल नंबर होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज. First 3 natural number 1, 2 and 3. Their cubes is and their sum is 36 and their square root is 6. So right answer is 6. Question 4. Cube of any multiples of 3 is always divisible by. All of these होना चाहिए क्योंकि जो भी 3 का क्यूब होगा वह 3 से 9 से 27 से तीनों से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 का क्यूब 27 डिविजिबल बाय ऑल 3. यदि 3 का मल्टीपल 6 का क्यूब 216 लेते हैं वह भी 3 से डिविजिबल होगा. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 0.125 इज 0.5. Cube root of 0.064 is 0.4 and their difference is 0.1. So right answer is 0.1. Question number 6. There are dash non-perfect square numbers between 121 and 144. 121 is the square of 11. 144 is the square of 12. So number of non-square numbers is 2 into n because 2 into 11 इक्वल टू 22 क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर मीन्स 11 स्क्वायर n प्लस 1 12 स्क्वायर. सो 2 into n. In this way we find the number of non-perfect square numbers between two consecutive perfect square numbers. Question number 7. Cube of minus 4 by 7. Cube of 4 minus 64. Cube of 7 343. So right answer is 3. Question number 8. The smallest number by which 250 should be multiplied so that the product becomes a perfect cube is. If we find the prime factorization of 250, then 2 into 5 into 5 into 5. 5 is in the pair of triplets, but 2 is not in the pair of triplets. So we should multiply 2 into 2 make the pair of triplets. 2 into 2 means 4. So right answer is 4. Question number 9. Minus 3 by 7 to the power x equal to 1. 1 means we can take the minus 3 by 7 to the power 0. Now base is same, so x equal to 0. So right answer is third 0. Question number 10. 2.5 into 10 to the power 5 is equal to. If we reduce to 2.5 means 25 by 10. 10 to the power 5 means 1 after 5 zeros. 1 zero is cancelled. 25 after 4 zeros means 2,50,000. So right answer is option 2, 2,50,000. Question number 11. For any two non-zero rational numbers p and q, p to the power 7 q divide q to the power 7 is equal to. So the answer should be p divide q to the power होल पावर 7. क्योंकि अगर ये डिवीजन में है पावर सेम है तो ये बेस भी डिवीजन में उसका होल पावर 7 हो जाएगा. क्वेश्चन 12. द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रूट 81. रूट मीन्स पावर 1 by 2. सो द पावर ऑफ 81 इज 1 by 2. सो राइट आंसर इज थर्ड 81 to the power 1 by 2. Now question number 13 to 16. Each question of 2 marks. Find the value of 9 square plus 12 square whole power 1 by 2. 9 square means 81. 12 square means 144. Their sum is 225. And 225 is the square of 15. And whole power 1 by 2. So power will multiply. 2 cancel. 15 answer. Question number 15.
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज -5832. First we should find out the prime factorization of 5832. It will be 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, again 3 into 3 into 3. Means 2 cube, 3 cube and again 3 cube. It is the cube of 18. And so the cube root of that number will be -18. Question number 15. Find the square root of 4 whole 49 upon 144. यदि इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 625/144 होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 625 का स्क्वायर रूट 25, 144 का स्क्वायर रूट 12। इसको मिक्स में अगेन कन्वर्ट करेंगे 2 होल 1/12, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट विथ है इट्स अ स्मॉल नंबर एज 9। तो यहाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है लिखना, तो 9, 40, 41 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। या दूसरा 9, 12, 15 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसका कि स्मॉलर नंबर 9 है। इसे हम लोग इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। स्मॉलर नंबर इज 9x, देन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.5, x स्क्वायर 9 स्क्वायर बाई 2, 9 स्क्वायर 81/2, 40.5 minus 0.5 will be 40. 9 square 81/2, again 40.5 plus 0.5 41. इस तरह से निकाल सकते हैं। चेक करने का 9 स्क्वायर 81 plus 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू 15 स्क्वायर 225। अदर 9 स्क्वायर 81, 40 स्क्वायर 1600, देयर सम इज 1681, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 41। इस तरह से यह दूसरा तरीका और है। फर्स्ट नंबर इज ऑड, देन देयर स्क्वायर, मीन्स 9 स्क्वायर 81, दैट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल्सो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड देयर सम इज इक्वल टू जस्ट लाइक ए स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर 81 और 40 प्लस 41 इट इज 81, और 41 माइनस 40 डिफरेंस 1। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 17, each question of 3 marks 17 to 20. Find the value of a if 3 to the power 2a plus 7 equal to 27 to the power 2a plus 1। यहाँ 3 का पावर है, इधर 27 का पावर है, तो 27 को कन्वर्ट करके हमें 3 के पावर के फॉर्म में लाना है। 27 इज द क्यूब ऑफ 3, LHS remain the same। Now 3 into 2a plus 1, 3 to the power 2a plus 7, here 3 to the power 3 into 2a 6a plus 3 into 1 3, here 3 3, both sides same, so exponent will be equal। Now we will take all the variable terms one side, means 2a minus 6a, and all constant term in one side, 3 minus 7 minus 4, minus 4 equal to minus 4a इक्वल टू -4, सो a इक्वल टू -4/4 1। यहाँ a का आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई 125 टू द पावर 1/3 इंटू 16 टू द पावर -1/4। 125 इज द क्यूब ऑफ 5, so 5 to the power 3 and whole power 1/3 will multiply। 16 is the cube of 2, 16 is the 2 to the power 4, 16 it can be written in the form of 2 to the power 4 whole power -1/4। 3 3 यहाँ पावर कैंसिल होकर 5 बचा, यहाँ 4 4 पावर कैंसिल होकर के 2 to the power -1 बचा, जिसे कि हम 1/2 लिख सकते हैं। 5 into 1/2 मीन्स 5/2, जो कि इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन 19, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो लिस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 आफ्टर 5 0, मीन्स 1 लाख। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। 3 into 3 9, 100 लेफ्ट, 3 plus 3 6 1, 61 into 1 61, 3900 रिमाइंडर, अगेन 627। 627 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इससे ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि अगर इससे कम लेते हैं
तो 316 का स्क्वायर होगा, फिर हमें 317 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर इस वे से चलते हैं तो हम एक बार में ही निकाल सकते हैं। 3900 से ये ज़्यादा हो गया 4389, तो इसे रिवर्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 489 आएगा। यानी 489 कम हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। ये 489 उस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में ऐड कर देना है। मीन्स 1 lakh plus 489 means 1 lakh 489 is the perfect square number, that is the least number of 6 digit। अब इसका स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 317, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 317। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 32,768 बाय एस्टिमेशन। इसे माइनस को अभी छोड़ करके एस्टिमेशन के मेथड से पहले क्यूब रूट निकाल लिया जाए, फिर बाद में माइनस साइन यूज कर लेंगे, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। यहाँ हमने दो ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप 1, 10 एंड 100 डिजिट का, और दूसरा ग्रुप बचे हुए सारे डिजिट्स का। फर्स्ट ग्रुप का 1s प्लेस डिजिट 8 है, 8 का क्यूब 512 होता है। 512 का यानी 1s प्लेस डिजिट जो 2 है, ये रिक्वायर्ड क्यूब रूट का 1s प्लेस डिजिट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। बचा हुआ जो सेकेंड ग्रुप का नंबर है 32, 32 से जस्ट बिफोर परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है, जो कि 3 का क्यूब हो रहा है। 32 के बाद जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर 64, जो कि 4 का क्यूब हो रहा है। 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 और 4 में छोटा नंबर कौन है? 3, तो 3 यह टेंस प्लेस पर आ जाएगा, यानी 32,768 का एस्टिमेटेड क्यूब रूट 32 हुआ। बट यह माइनस में है, इसलिए क्यूब रूट भी माइनस में होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। सो राइट आंसर इज -32। क्वेश्चन नंबर 21, केस स्टडी क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। रोहित रन अराउंड ए स्क्वायर गार्डन 5 times एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ घूमते हुए 5 चक्कर में 1000 मीटर रोहित दौड़ा। राधिका वॉक around a rectangular garden twice and covered the distance of 1200 meter. If the length of the rectangular garden is twice its breadth, answer the following question। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है और एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो 1000 मीटर कवर किया गया 5 राउंड में, तो 1 राउंड में जो होगा वैल्यू वो उसका पेरीमीटर होगा, और फिर उससे साइड निकाल करके एरिया निकालेंगे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी 1000 मीटर 5 चक्कर में पूरा किया है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 200 मीटर एक चक्कर में 200 मीटर उसने दौड़ा, यानी पेरीमीटर हो गया 200 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू 200 मीटर, मीन्स साइड इक्वल टू 200/4 मीन्स 50 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 50 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, 50 मीटर इंटू 50 मीटर 25 स्क्वायर मीटर। यह हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ए का आंसर हो गया। बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 चक्कर में 1200 मीटर, तो 1200 मीटर 2 चक्कर में हुआ है। राधिका 1200 मीटर 2 चक्कर में वॉक की है, तो 1 चक्कर में 1200/2 यानी 600 मीटर। एक चक्कर में राधिका जो वॉक की है वो 600 मीटर हो गया, जो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, जिसमें कि कह रहा है कि रेक्टेंगल का ब्रेथ जो भी है उसका ट्वाइस है लेंथ। अगर ब्रेथ बी हम लेट कर लेते हैं तो लेंथ 2b हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर भी हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ के जगह पर ट्वाइस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथ के जगह पर ब्रेथ ही रखना है, यानी 2 + 1 3b, 3 2 जा 6b मीटर। 6b मीटर यह पेरीमीटर हो गया, जबकि हमने एक चक्कर में 600 मीटर जो निकाला है वह भी पेरीमीटर है। 6b पेरीमीटर और 600 मीटर पेरीमीटर दोनों सेम हो जाएगा, दोनों रेक्टेंगल का ही है। इससे हम लोग b निकालेंगे, यानी ब्रेथ जो कि 100 मीटर हो गया। अगर ब्रेथ 100 मीटर है तो लेंथ उसका ट्वाइस है, यानी 200 मीटर है। नाउ एरिया ऑफ गार्डन, लेंथ इंटू ब्रेथ।
Again 200 meter is the length, breadth is 100 meter. 200 into 100 20,000 meter square, either a square meter. यह हो गया area of garden. Now question number 22, second case study question. A bag contains blue, red and green balls in the ratio of 2:3:4. If the product of ratio is 3000, find the number of each colored ball, and second the total number of balls in the bag. यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ब्लू, रेड और ग्रीन बॉल्स हैं जो कि रेशियो है 2:3:4. प्रोडक्ट उनका 3000 है, तो इससे हमें निकालना है कि प्रत्येक कलर के बॉल्स कितने हैं. तो इसके लिए फर्स्ट हम लेट कर लेंगे. लेट नंबर ऑफ बॉल्स दैट आर ब्लू, रेड एंड ग्रीन विल बी 2x, 3x एंड 4x. सभी बॉल्स को लेट कर लिया. तीनों का प्रोडक्ट कहा जा रहा है कि वह 3000 है. मीन्स 2x इंटू 3x इंटू 4x इक्वल टू 3000. अब यहाँ ये सभी का प्रोडक्ट करेंगे. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, x इंटू x मीन्स x क्यूब. 24x क्यूब इक्वल टू 3000. यदि 24 को RHS में भेजेंगे तो 3000/24 होगा और कैंसिल करके 125 आएगा जो कि 5 का क्यूब है. या x क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब मीन्स x इक्वल टू 5. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट सेम हो गया. या हम दूसरे तरीके से यह भी कर सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 125, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125. अगर क्यूब RHS में भेजा जाएगा तो वह क्यूब रूट हो जाएगा 125 का जो कि 5 आएगा. इस तरह से x का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया. अब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं 2x हमने लेट किया है. तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है. 2 इंटू 5 इक्वल टू 10. यह 10 हो गए ब्लू बॉल्स. दूसरा नंबर ऑफ रेड बॉल 3x, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 रेड बॉल्स. नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 4x, 4 इंटू 5 में 20. यानी ब्लू बॉल्स 10, रेड बॉल्स 15 एंड ग्रीन बॉल्स 20 हो गया. यह एक आंसर हो गया. सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालने दिया है 10, 15, 20, टोटल 45 बॉल्स हो गए. यह 45 बॉल्स इस बैग में है. इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया 1 से 22 तक. और आपको शायद इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा और सॉल्यूशन के द्वारा थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके, जिससे हमें खुशी होगी. ओके, धन्यवाद. फिर आगे दूसरे क्लास का क्वेश्चन पेपर के साथ मैं फिर आऊँगा और आप उससे हेल्प ले सकते हैं. ओके, थैंक यू. अगेन आई विल मीट.